Hello students, I welcome you all to this YouTube channel Omkar English Classes, and today I am going to teach you fifth part of the chapter on the face of it. Mr. Lem, well, that didn't stop you. You didn't mind. Daddy, I'd stop them, they would mind me. When they saw me here, they look at my face and run. Mr. Lamb, they might not. You would have to take the risk. So would they? Daddy, no, you would. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. Mr. Lamb, I have not moved. Daddy, no. Mr. Lamb, when I go down the street, the kids shout Lammy Lamb, but they still come into the garden, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I am not afraid of them. That's why not. Daddy, did you get your leg blown off in the war? Mr. Lamb, certainly. मिस्टर लैम कहते हैं लोग जो कुछ भी कहते हैं उनको तुम्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है, उनको कहने दो. डैरी कहता है उनको मैं रोकूंगा नहीं, वो मेरा चेहरा देख के भाग जाते हैं. मिस्टर लैम कहते हैं कि हो सकता है, हो भी नहीं सकता, तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा. डैरी कहते हैं नहीं, तुम्हारे पास तो मैं हूँ, बाकी सारे दोस्त चले जाएं तो मैं रहूँगा, लेकिन मेरे पास तो कोई रहना नहीं चाहता ना, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. मिस्टर लैम कहते हैं मैं तो यहाँ से कहीं नहीं गया, और लोग बच्चे मुझे क्या कहते हैं, लैमी लैम कह के बुलाते हैं जब मैं गली में जाता हूँ. वो फिर भी मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं. ये तो गेम है, वो मुझसे डरते नहीं हैं. और डरे भी क्यों? क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता. तो डैरी यहाँ टॉपिक चेंज कर देता है. वो कहता है कि तुम्हारी टांग कैसे ख़राब हो गई थी, किसी वॉर में ख़राब हुई थी क्या? मिस्टर लैम कहते हैं हाँ. Daddy, how will you climb on a ladder and get the crab apples down then? Mr. Lamb, oh, there is a lot of things I have learned to do and plenty of time for it. Years I take it steady. Daddy, if you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die. If you were on your own. Mr. Lamb, I could. Daddy, you said I could help you. Mr. Lamb, if you want to. Daddy, but my mother will ask to know where I am. It's 3 miles home across the fields. I am 14, but they still want to know where I am. Mr. Lamb, people worry. Daddy, people fuss. Mr. Lamb, go back and tell them. Daddy, it's 3 miles. Mr. Lamb, it's fine evening. You've got legs. Daddy, once I got home, they would never let me come back. तो डैडी कहता है कि आप सीढ़ी पे चढ़ के क्रैब एप्पल्स को कैसे गिराओगे? मिस्टर लैम कहते हैं बहुत प्रैक्टिस हो गई है मेरे को इस काम की. तो डैडी कहता है गिर के अगर तुम्हारी गर्दन टूट गई और तुम्हारी डेथ हो गई तो, अगर तुम यहाँ अकेले हो गए तो? उसने कहा हाँ हो सकता है. तो डैडी कहता है कि मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कर सकते हो. डैडी ने कहा मेरी मम्मी मुझे पूछेगी तुम कहाँ थे. 3 मील है खेतों को पार करके मेरा घर. मैं 14 साल का हो गया, लेकिन अभी भी वो इसे पूछना चाहते हैं मैं कहाँ रहता हूँ. मिस्टर लैम कहते हैं अभी लोग तो चिंता करते ही हैं. डैडी कहते हैं लोग बकवास करते हैं. मिस्टर लैम कहते हैं तो जाओ ना, उनको जाके बता दो कहाँ हो तुम. डैडी कहते हैं 3 मील है. उसने कहा तो क्या हुआ, टांगे हैं तुम्हारी, इतनी अच्छी शाम है, चले जाओ. तो डैडी बोलता है कि एक बार मैं घर चला गया तो मुझे वापस नहीं आने देंगे वो लोग. Mr. Lamb, once you got home, you'd never let yourself come back. Daddy, you don't know what I could do. Mr. Lamb, no, only you know that. If I choose. Oh, if you choose, I don't know everything. Why? I can't tell you what to do. Daddy, they tell me. Mr. Lamb, do you have to agree? Daddy, I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. Something just mine, like this garden. I don't know what is. Mr. Lamb, you could find out. Daddy, how? Mr. Lamb, waiting, watching, listening, sitting here and going there. I will have to see to the bees. Daddy, those other people who come here, do they talk to you, ask you things?
तो मिस्टर लैम कहते हैं एक बार घर जाओगे तो वापस तुम नहीं आओगे, वो तुम्हें आने नहीं देंगे, तुम कभी नहीं आओगे। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा हाँ तुम ही जानते हो। उसने कहा अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ कुछ भी। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा अगर तुम चाहो, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ लड़के, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करना है, तुम्हें ही पता है यहाँ आने के लिए तुम क्या कर सकते हो। डैरी हाँ वो मुझे बोलते हैं लैम, तो क्या तुम एग्री हो जाते हो। डैरी मुझे खुद ही पता नहीं होता मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता, मैं ऐसा चाहता हूँ जो किसी के पास नहीं है कुछ, बस वो मेरा हो। जैसे कि ये गार्डन है, कम से कम तुम्हारा अपना तो है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। मिस्टर लैम ने बोला यू कुड फाइंड आउट, तो ढूंढो भाई मिलेगा। वो कहा कैसे भाई, कैसे मिलेगा तुम्हें ऐसा गार्डन या कोई ऐसी चीज़ जो तुम चाहते हो। वेटिंग, इंतज़ार करना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, यहाँ वहाँ बैठना पड़ता है। और फिलहाल अभी मैं उन मधुमक्खियों को देखने जा रहा हूँ, मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं उधर कोने में। तो डैरी ने बोला जो लोग यहाँ आते हैं तुमसे बात करते हैं, तुमसे कुछ पूछते हैं या नहीं। मिस्टर लैम सम डू सम डोंट, आई आस्क देम आई लाइक टू लर्न, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं बात। और मैं उनसे कुछ से मैं ही खुद पूछ लेता हूँ कुछ बातें, वो नहीं करते तो, क्योंकि मुझे सीखना अच्छा लगता है। डैरी आई डोंट बिलीव इन दैम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे उनमें विश्वास नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई आता भी होगा। यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ, तुम ही रहते हो यहाँ, एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो, इतनी दयनीय दशा तुम्हारी है कोई नहीं पूछेगा तुम यहाँ मरे हो या जिंदा हो, कोई परवाह नहीं करता तुम्हारी। मिस्टर लैम यू थिंक व्हाट यू प्लीज़, मतलब जो मर्जी सोच लो तुम कुछ भी। डैरी ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, कुछ के नाम बताना अच्छा जो यहाँ आते हैं। व्हाट आर नेम्स, नाम में क्या रखा है, टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी हो सकता है। तो उठते हुए बोलता है आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, मुझे वो मधुमक्खी के पास जाना है। हैरी कहता है आई थिंक यू आर डाफ्ट क्रेजी। मिस्टर लैम कहता है दैट्स अ गुड आई एक्सक्यूज़, हाँ अच्छा बहाना है। किस लिए बहाना है, तुम कभी कभी सीधी बात भी कर लिया करो, मुझे समझ नहीं आया क्या बहाना बना रहा हूँ मैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, यहाँ वापस ना आने का अच्छा बहाना है। एंड यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस, तुम्हारा फेस जला हुआ है ना, ये बहाना है। एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, और बाकी लोगों के भी एक्सक्यूज़ तुम्हारे पास है, बहुत अच्छी बात है। डैरी कहते हैं यू आर लाइक द अदर्स, तुम भी दूसरों की तरह हो, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम भी ऐसी बातें करते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर तुम मेरे फेस के प्रति अफसोस नहीं फील करते, यू आर फ्राइटनिंग ऑफ इट, तुम भी डरते। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटन, अगर तुम नहीं डरते, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, तो फिर तुम ये सोचते कि मैं बड़ा गंदा हूँ, मैं बड़ा राक्षस हूँ, आई एम अ डेविल डोंट यू, नहीं सोचते तुम, चिल्ला के बोलता है। मिस्टर लैम रिप्लाई तो नहीं करते, वो अपनी बीज के पास चले जाते हैं, मधुमक्खियों के पास चले जाते हैं। Students, thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe and share this channel and press the bell icon if not pressed. Students, one by one and slowly I will prepare important videos on this YouTube channel to make you understand more and more about grammar. Further, I will also explain many types of grammar topics like passive voice, indirect speech, prepositions, modals, etc. You will find more and more. Thank you. Have a nice day.